حساب آ گیا کمزور ہاں ویسے تو بہت طاقت ہے. کہاں الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے سلسلے میں ہم بات کریں گے، اور کل بات آئی تھی اس پر. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا ہے. آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور زندہ ہے، ان کی موت نہیں ہوئی. جیسا کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی اور ان کو مارنے کی جو بھی کوششیں ہو سکی انہوں نے کی، اور یہاں تک کہ ان کے زعم کے حساب سے، گمان کے حساب سے عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی دے دیا ہے، قتل کر دیا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران وغیرہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ طور پر ہوئی. آپ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اسی لیے آپ ماں کی طرف منسوب ہوتے ہیں. عیسیٰ بن مریم، یعنی مریم یہ ان کی والدہ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دیا اللہ رب العالمین نے. یہودیوں نے یہ سازش کیا کہ ان کو قتل کیا جائے، ان کو مارا جائے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان تراشی اور کیا کیا الزام لگائے کہ یہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. بہرحال ان کو قتل کرنے کی انہوں نے سازش کی، تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اسی کی تردید اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کر رہا ہے. جو یہودیوں کے یہاں جو کچھ پایا جاتا تھا، جو ان کا عقیدہ تھا، اور یہ کہتا تھا کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، تو اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ ان کا یہ کہنا، یعنی یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تو اسے انہوں نے قتل کیا اور نہ تو ان کو سولی پر چڑھایا. جیسا کہ ابھی دیکھیے نا، صلیب ہے نا عیسائیوں کے یہاں، صلیب معلوم ہے؟ ہاں، تو یہ ان کے سولی پہ چڑھانے کا وہ نقشہ بناتے ہیں لوگ اور لگاتے ہیں گلے میں یہ لوگ. تو یہودیوں نے جو یہ سوچا اور یہ کہا کہ ہم نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، تو کیا واقعی میں عیسیٰ علیہ السلام تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ نہ تو عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا اور نہ تو ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ہاں ان کے شبیہ کو، ان کے جو مانند تھے نا، دوسرا شخص تھا. اور جیسا کہ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے قتل کرنے کا ارادہ بنایا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو میری جگہ آئے، اللہ رب العالمین اس کو میری شکل دے گا. تو اس کے ایک ساتھی میں سے، حواریوں میں سے ایک آیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ آئے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی شکل ویسے ہی بنا دی عیسیٰ علیہ السلام جیسی، جیسا کہ آتا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرما رہا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ہاں عیسیٰ کے شبیہ تھے، ان جیسے تھے، جس کو ان لوگوں نے کیا کیا، سولی پر چڑھایا. اور قتل کرنے کی جو بات آئی اس کو انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے یہ بھی بیان فرما دیا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے. کب آئیں گے؟
क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में जैसा कि हदीस के अंदर आता है और कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके नुज़ूल की तरफ इशारा किया है। सही मुस्लिम के अंदर हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इत्तला अलैना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए व नहनु नतज़ाकर, हम लोग बहस मुबासा कर रहे थे यानी गुफ्तगू कर रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हो? तो लोगों ने कहा कि हम क़यामत के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, क़यामत के सिलसिले में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तरौना क़ब्लहा अशरा आयात, यहाँ तक कि तुम 10 निशानियाँ न देख लो, यानी 10 निशानियों से पहले क़यामत वाक़ई नहीं होगी। उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धुएँ का निकलना, दज्जाल का जो खुरूज है, दज्जाल निकलेगा और सूरज पश्चिम से निकलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो गिनाया वो नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में कि कुरान करीम के अंदर जैसा कि ये आया है कि ये जो क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं ना, उनमें से एक अजीम निशानी ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत आने से पहले, ये दुनिया फ़ना होने से पहले इस दुनिया के अंदर वो नाजिल होंगे, वो आएंगे और ये हक़ है। इसके बारे में कुरान करीम के अंदर जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह, इससे पहले है कि जो यहूदियों ने जो कुछ किया या मुशरिकीन जो कुछ करते थे, अपने देवी देवताओं को पूजते थे, है ना, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान फरमा दिया है कि वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम मसला इज़ा क़ौमुका मिन्हु यसिद्दून, यानी ये लोग झगड़ा करते थे और ये कहते थे कि भाई जिनको तुम पुकारते हो तुम वो लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। तो ये मुशरिकीन कहते थे कि ये यहूदी या नसरानी जो ईसा को पूजते हैं तो ये अंबिया भी जहन्नम में डाले जाएंगे। ये सब भी जैसा कुरान में फरमाया ना, इन्नकुम व मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि जिसको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, वो सारे जहन्नम में डाले जाएंगे। तो ये मुशरिकीन कहने लगे कि तब तो अंबिया भी डाले जाएंगे, अंबिया भी डाले जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे यहाँ उनके बारे में बयान फरमा दिया कि अंबिया इसे इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून, कि जिनके लिए नेकियां पहले आ चुकी है तो वो लोग जहन्नम से बचा लिए जाएंगे। अंबिया के बारे में नहीं, जो लोग दुनिया के अंदर अंबिया के अलावा जिसको फ़ोटो बना करके पूजते हैं, मूर्ति बना करके पूजते हैं, उसके बारे में आता है कि उसको जहन्नम में डाला जाएगा। ये जो लोग पुजारी हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन रुसवा करेगा और इहानत करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो वही रद्द किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इसी आयत के अंदर है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी है। व इन्नहु लइल्मुल लिस्साअह फला तमतरुन बिहा, अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत की इस निशानी के बारे में शक न करो। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर आएंगे। और जैसा कि कुरान करीम की दूसरी आयत के अंदर है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सारे अहले किताब ईमान ले आएंगे, सारे अहले किताब ईमान ले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम कब नाजिल होंगे, वक्त क्या है? तो इस सिलसिले में जैसा कि क़यामत की निशानियों में से है, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी दज्जाल है। दज्जाल के बारे में कल कुछ इशारा किया गया था कि दज्जाल का फितना रुए ज़मीन पर सबसे बड़ा फितना होगा और ये दाएं बाएं हर तरफ ये हंगामा मचाएगा, ये लोगों को गुमराह करेगा। तो इसी तरह से वो गुमराह करता रहेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेगा, नाजिल करेगा। और चूँकि दज्जाल को कत्ल वही करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम ही दज्जाल को कत्ल करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इसके बारे में सही मुस्लिम के अंदर नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लंबी रिवायत है जिसमें पूरा वाक़या उसमें दज्जाल के बारे में ज़िक्र किया गया है। और उसी के अंदर है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर आएंगे तो क्या होगा और कैसे नाजिल होंगे और कहाँ उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। तो दज्जाल चूँकि दुनिया के हर खित्ते में जाएगा, मक्का मदीना या बताया गया था कि मस्जिद अक्सा और मस्जिद तूर में नहीं जाएगा, बाकी हर जगह जाएगा। लास्ट में ये लोग सारे वहीं पहुँचेंगे, कहाँ?
शाम में या मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द ये लोग सारे मुसलमान जो भी होंगे ना वही होंगे, इधर से सारे वहीं जाएंगे। तो मुसलमानों को ये दज्जाल और इनके जो पैरोकार जो यहूदी होंगे 70,000, ये सब मुसलमानों को महसूर या कैद कर रखे होंगे कि निकलेंगे तो इसको कत्ल करेंगे। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन उतारेगा। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और वो नाजिल कहाँ होंगे? जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है कि जामे मस्जिद उमवी है, जामे उमवी है दिमश्क की, जो मशरिक़ी इलाका है ना, वहाँ वो मीनारे के पास जो सफ़ेद मीनारा है, 2 फरिश्तों के सहारे वहाँ उसके करीब वो नाजिल होंगे, वहाँ उतरेंगे वो। जैसा कि सही मुस्लिम की ये हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़बैनमा हुआ कज़ालिक इज़ बअसल्लाहु ईसा इब्न मरियम, कि दज्जाल ये हंगामा मचाएगा दाएँ बाएँ हर तरफ, तो इसी बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा। फ़यंज़िलु इंदल मनारतिल बैज़ा शर्क़ी दिमश्क, दिमश्क के जो शर्क़ी इलाका है ना, वो मनारे के पास वहाँ ये उतरेंगे। उसके बाद वादियन कफ़ई है अला अजनिहतिम मलकैन, यानी 2 फरिश्तों के सहारे वहाँ वो उतरेंगे और इनके सर से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। पानी के कतरे जब वो सर नीचे करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी के कतरे गिर रहे हैं, और जब ऊपर करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि मोतियों के जो होता है ना वो कतरात वो गिर रहे हैं, ऐसा होगा जब ये उठाएंगे। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की बू जो भी काफिर सुनेगा ना वो मर जाएगा, जो भी इसके सांस महसूस करेगा ना वो मर जाएगा। हदीस के अंदर है फ़ला यहिल्लु लिकाफिरिन यजिदु रिह नफ्सिही इल्ला मात, जो भी इसके सांस को महसूस करेगा ना पाएगा ना वो मर जाएगा, जो भी काफिर होगा सब मर जाएगा। उसके बाद वनफ्सुहु यंतही हैसु यंतही तरफु, इसकी सांस कहाँ तक पहुँचेगी? जहाँ तक इसकी हद निगाह यानी निगाह पहुँचेगी ना वहाँ तक इसकी सांस पहुँचेगी ईसा अलैहिस्सलाम की, वहाँ तक। हत्ता युद्रिकहु बेबाबिलुद, दज्जाल को चूँकि ये तब तलाश करेंगे और बाबिलुद पे जा कर के उसको ये पकड़ लेंगे, दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम उसको जा कर के पकड़ लेंगे और उसके बाद फ़यक़्तुलहु, उसके बाद दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। इससे पहले क्या होगा? ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो बाज़ रिवायत के हिसाब से ये फजर का टाइम होगा, फजर का टाइम होगा और फजर की अजान हो चुकी होगी। 2 फरिश्तों के सहारे वो उतरेंगे ना तो मस्जिद में इकामत कही जा रही होगी या लोग सफ़ लगा रहे होंगे नमाज के लिए, और उसके जो इमाम होंगे जो सालेह नेक वो आगे होंगे। तो इतने में ईसा अलैहिस्सलाम पर उसकी नज़र पड़ेगी तो वो हट जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि आप बढ़ करके इमामत करवाइए। तो वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम, और ये सब सही हदीस है, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, इकामत आपके लिए कही गई है। और इससे ये पता लगा यानी इससे ये पता चलता है कि इस उम्मत की जो फजीलत और जो शर्फ है ना वो उसका अंदाज़ा होता है इससे कि ईसा अलैहिस्सलाम उस इमाम से कहेंगे कि नहीं, इकामत आपके लिए कही गई है, आप इमामत करवाइए। ईसा अलैहिस्सलाम उसके ताबेदारी में वो नमाज़ पढ़ेंगे, यानी मुक्तदी बन करके वो नमाज़ पढ़ेंगे यहाँ। और इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि ये नेक आदमी से मुराद जो इमाम होगा वो महदी के बारे में जिक्र करते हैं कि ये महदी होंगे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा ही उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वल्दियत भी वही, और फ़ातिमा के नस्ल से होंगे। तो उसके बारे में उलमा ने जिक्र किया है कि ये महदी होंगे। बहरहाल वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम इनके साथ नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करेंगे, बैतुल मक़दिस की तरफ ये जाएंगे। कहाँ उतरेंगे ये? दिमश्क में जो जामे उम्मी है ना उसके जो सफ़ेद मनारा है उसके करीब, वहाँ से फिर ये बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करेंगे। और मुसलमान उस वक्त बैतुल मक़दिस के अंदर मस्जिद के अंदर बंद होंगे क्योंकि दज्जाल और इसके जो पैरोकार यहूदी होंगे वो घेर रखे होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के बाद वैसे मुसलमान से कहेंगे कि दरवाज़ा खोल दो, तो दरवाज़ा खोला जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला जाएगा तो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो भागेगा और वो वैसे ही पिघलेगा जिस तरह के
जिस तरह के पानी में नमक डाला जाता है। जिस तरह के पानी में नमक पिघलता है, भागेगा। तो बाब लुद पर जा कर के ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देंगे। फिर उससे पहले मैं कहा कि जो भी ईसा अलैहिस्सलाम की सांस पाएगा ना, जो भी काफिर होगा सब मर जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम उस कौम के पास जाएंगे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दज्जाल के फितने से महफूज कर रखा होगा, बचा रखा होगा। उनके चेहरे पर ये हाथ फेरेंगे और जन्नत में इनके दर्जात की खुशखबरी सुनाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जन्नत में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है उसकी खुशखबरी ये देंगे, बशारा सुनाएंगे मोमिनों को। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम का जो पहला काम होगा वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। क्या करेंगे? दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो खिंजीर को कत्ल किया जाएगा, खिंजीर सूअर को कत्ल किया जाएगा। इसी तरह से सलीब को तोड़ा जाएगा। सलीब के बारे में अभी बताया, सलीब मालूम है ना? हाँ, सलीब को तोड़ा जाएगा, जिजिया को ख़त्म किया जाएगा। कि इसी तरह से दज्जाल को तो कत्ल करेंगे ही, और जिजिया जो लेते हैं ना, किसी मुल्क में अदा करके रहते हैं, तो ये सब वो कबूल नहीं करेंगे। जो इस्लाम ले आएगा समझाने से ठीक है, वरना उसके साथ क़िताल करेंगे वो। यहाँ तक कि सिर्फ मुसलमान ही रह जाएंगे, मुसलमान ही सिर्फ रहेंगे, मुसलमान के अलावा कोई और नहीं रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम एक आदिल मुनसिफ बन कर के दुनिया के अंदर आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जुल्म को ख़त्म करेंगे और अदल इंसाफ से लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी के ऊपर कोई जुल्म ज़्यादती और किसी के साथ बेइंसाफ़ी का मामला नहीं होगा। तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो जो भी यहूदी है ना, या तो ईमान लाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे तो वो कत्ल किए जाएंगे। और जैसा कि कुरान करीम की जो आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सारे के सारे अहले किताब वो ईमान ले आएंगे। जैसा कि कुरान में फरमाया, वही मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही, कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सारे के सारे ये ईमान ले आएंगे। अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि वो ज़ात की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, कि करीब है कि ईसा बिन मरियम तुम्हारे दरमियान एक इंसाफ करने वाले की हैसियत से आएंगे और सलेब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, और इसी तरह से जिजिया को ये ख़त्म करेंगे। यानी किसी काफिर से जिजिया नहीं कबूल करेंगे, या तो इस्लाम ले ले, नहीं तो वो कत्ल किए जाएंगे। सिर्फ यही मसला होगा। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो माल की बहुतात होगी। हदीसों के अंदर आता है कि माल की फरावानी होगी, इस कदर रेल पेल कि कोई किसी दूसरे का माल नहीं लेगा। एक ऊँट का दूध एक कबीला के लिए काफ़ी होगा, एक गाय का दूध एक बड़े ख़ानदान के लिए काफ़ी होगा। इसी तरह से बकरी का दूध बहुत सारे लोगों को काफ़ी होगा। इसी तरह से हदीस के अंदर आता है, उसका खुलासा सिर्फ ये है कि एक अंगूर का जो खोशा आता है ना, उससे बहुत सारे लोग खाएंगे। यानी माल की कमी नहीं होगी, माल की बहुतात होगी। लोग गरीब नहीं होंगे, मोहताज नहीं होंगे। जिनके पास, हाँ, हदीस के अंदर ये भी आया है कि उस वक्त ये एक सजदा दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर होगा। एक सजदा दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे ये बेहतर होगा। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर आएंगे तो दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम होगा। यहाँ तक कि इब्न माजा वगैरह के अंदर हदीस है कि एक बच्ची शेर के पास या भेड़िए के पास जाएगी तो वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएगा। भेड़िया और बकरी, ये शेर सब एक घाट से पानी पिएंगे, कोई किसी को, यानी सांप वगैरह जो भी जहर आलूद जानवर है ना, उसका जहर ख़त्म कर दिया जाएगा। बच्चे सांप के मुंह में हाथ डालेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमन व अमान, यानी ख़तरे वाली कोई बात ही नहीं होगी। बिल्कुल अमन व अमान की ज़िंदगी मुसलमान वहाँ गुजार रहे होंगे। फिर इसी दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहेगा कि मैंने अपनी एक कौम को निकाल दिया है, लिहाजा आप ईमान वालों को लेकर के पहाड़ में छुप जाएं, आप इनसे मुकाबला या क़िताल करने की ताकत नहीं रखते हैं। किसको? याजूज माजूज को। कल इशारा किया गया था
याजूज माजूज को अब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुरूज का वहाँ हुक्म दे देगा और ये वहाँ निकलेंगे। याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा है। और एक हदीस के अंदर आया है याजूज माजूज के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर 1000 में 999 ये जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में। तो सहाबा रोने लगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश हो जाओ, ये 999 कितने किस में से है? ये याजूज माजूज में से है। 999 यानी हर 1000 में एक जन्नती है और 999 जहन्नमी है। ये याजूज माजूज की तादाद पे आप गौर कर सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो याजूज माजूज का जब खुरूज होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप छुप जाए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर के छुप जाएंगे और फिर वहाँ दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको ख़त्म करेगा। वहीं जबल ख़मर के पास वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी गर्दन में नगफ कीड़ा पैदा कर देगा, जिससे सारे के सारे लोग एक ही वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। और इनका जो मसला है, कभी दज्जाल क्या नाम याजूज माजूज पे होगा तो हम तफसील से बात करेंगे। इनको हलाक करेगा और फिर अल्लाह रब इनकी बदबू फैल जाएगी, बहुत फैल जाएगी बदबू। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको ख़त्म कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े परिंदे को भेजेगा, जो कि ऊँट, बड़ा बड़ा ऊँट होता है ना, वैसा होता है। और अल्लाह जहाँ चाहेगा इनकी लाश को फेंकाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश बरसाएगा, पानी उतारेगा, हर कीमा हर जगह में पानी पहुँचेगा और ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और फिर अमन व अमान का ज़िंदगी चलेगा और अमन व अमान की ज़िंदगी लोग गुजारेंगे। और फिर ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देगा कि अपने फल को पैदा करो। वहीं अंगूर पैदा होगा और दूसरी जो चीज़ें हैं तो एक खोशा से एक कबीले खाएंगे या बहुत सारे लोग खाएंगे, या इसके छिलके को लोग साया बना करके चलेंगे। छिलका जो होता है इसका साया बना करके चलेंगे। तो ये आखिरी वक्त में है कि उस वक्त फरावानी होगी, सिर्फ एक ही दीन का मानने वाला होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, कि क़यामत तक एक गिरोह, एक जमात हक़ पे कायम रहेगी और ये अल्लाह के रास्ते में लड़ती रहेगी क़यामत तक का मामला होगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, मुसलमान उसके बाद भी ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जैसा कि एक हदीस के अंदर आता है, अबू दाऊद और मुस्नद अहमद की हदीस है कि ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर 40 साल रहेंगे। कितने? 40 साल रहेंगे। और फिर सही मुस्लिम के अंदर हदीस भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम हज और उम्रा करेंगे, इहराम मकाम रोहा से बांधेंगे, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदिही, कि वो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, बेफजी रोहा, यानी रोहा ये मक्का और मदीना के दरमियान में एक जगह है, यहाँ से ये इहराम बांधेंगे, हज या उम्रा, या हज उम्रा दोनों का इहराम बांधेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होने के बाद भी हज होता रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जा कर के हज करेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की मौत होगी। ईसा अलैहिस्सलाम फिर मर जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम दफन कहाँ होंगे, इस सिलसिले में एक रिवायत पेश की जाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर के दरमियान इस बीच में ये दफन किए जाएंगे और ये चौथी कब्र होगी इनकी चौथी कब्र होगी। लेकिन ये रिवायत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इब्ने अबी दुनिया ने इसको जिक्र किया है, लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। यानी दफन कहाँ होंगे, नहीं होंगे, इस सिलसिले में कोई सही रिवायत नहीं है। बल्कि बाद ने जिक्र किया है कि दिमश्की में जाएंगे, उधर ही ये मरेंगे और वहीं उनको दफन किया जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर 40 साल रहेंगे और बाज़ रिवायत के अंदर 45 साल का जिक्र आता है, शादी करेंगे। और वही रिवायत है कि जिसमें दफन की बात है ना, शादी करेंगे और फिर बच्चे होंगे। तो ये रिवायत सही नहीं है, वो रिवायत सही नहीं। अलबत्ता 40 साल दुनिया के अंदर रहेंगे और अमन व अमान कायम करेंगे, बिल्कुल मुनसिफ और आदिल हाकिम की हैसियत से दुनिया के अंदर आएंगे। मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा और फिर मुसलमान आम हालत में ज़िंदगी गुजारेंगे, खुशहाली में रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, हवा चलाएगा और फिर सारे के सारे लोग क्या है दुनिया से चले जाएंगे। ये आखिरी मरहले की बात है, ये क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से। और क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों के बारे में इतना देखिए, छोटी छोटी जो निशानियां हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर के चालू है।
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جو نشانیاں ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ ہو دوبارہ نہ ہو، یعنی دوبارہ اس کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں نا، بڑی بڑی نشانیاں جب آئیں گی تو ایک نشانی ابھی چل رہی ہوگی تو دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی، اور یہ جو 10 نشانیاں ہیں، جیسے مان لیں کہ 3 جگہ زمین دھسے گی، ہے نا، سورج پچھم سے نکلے گا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ہے نا، تو یہ جو نشانیاں ہیں نا، اور سب سے آخری نشانی جیسا کہ حدیث کے اندر ہے اسی میں کہ وآخر ذالک نار تطرد الناس الی محشرہم، کہ آخری نشانی آگ نکلے گی، کہاں سے؟ یمن سے، جو لوگوں کو ہکا کر کے محشر کی طرف لے جائے گی، یہ آخری نشانی ہوگی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، یہودی کا خاتمہ ہوگا، یہودی مارے جائیں گے۔ تو یا تو ایمان لے آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ایمان لے آئیں گے تو حدیث کے اندر ہے وہ صرف اسلام ہی کو قبول کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کی اپنی شریعت نہیں چلے گی، یا اللہ رب العالمین نے ان کو جو کتاب دیا انجیل تو اس کے حساب سے وہ فیصلے نہیں کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے قرآن کے حساب سے وہ فیصلے کریں گے۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تورات لیے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ تورات جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرنی پڑتی، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ انبیاء سے اللہ رب العالمین نے یہ عہد اور پیمان لیا، یہ میثاق لیا کہ جو تمہیں کتاب اور حکمت دی جا رہی ہے اور اس کی تصدیق کے لیے اگر کوئی رسول آ جائے تو کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مدد کریں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو نبیوں نے کہا کہ ہاں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ گواہ رہو، میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے تو ان کی اپنی شریعت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، اسی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ ختم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قیامت تک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حساب سے فیصلہ کریں گے اور لوگوں کو اسی کے حساب سے بتلائیں گے، اور اسی پر وہ مریں گے اور اسی کے حساب سے وہ زندگی گزاریں گے جب تک رہیں گے تب تک۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ ہے، ویسے ہم اگر حدیث بیان کرتے تو لمبا ہوتا، لیکن اختصار میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے آخری زمانے میں آخری وقت میں ان کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں آئیں گے، کہاں؟ دمشق میں اتریں گے۔